So next is Bayesian classification, where we will be learning naive-Bayes classifiers. So Bayesian classification are statistical classifiers that can predict class membership probabilities such as probability that a given tuple belong to a particular class. यही हम classification में कर रहे थे कि अगर न्यू हमारे पास में कोई रिकॉर्ड है तो वो किस क्लास में बिलोंग करता है, हमें यही तो प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बेस थियरम। अब नेव बेस क्लासिफायर का एक अजम्पशन है, वो अज्यूम करके चलता है that the effect of an attribute value on a given class is independent of the value of the other attribute। उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर अगर एट्रीब्यूट है तो उसका इफेक्ट जो क्लास पर होएगा वो दूसरे एट्रीब्यूट से इंडिपेंडेंट है, यानी सिर्फ उसी का इफेक्ट हो रहा है, बाकी दूसरे एट्रीब्यूट्स का इस वक्त कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस अजम्पशन इज कॉल्ड एज कंडीशनल इंडिपेंडेंसी। वो बोलता है कि वो इंडिपेंडेंट है क्लास, यानी मैं एट्रीब्यूट हूँ तो मेरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लाइक दूसरे एट्रीब्यूट से वो इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज द अजम्पशन ऑफ नेव बेस्ड क्लासिफायर। तो जैसे कि मैंने बताया, इट इज बेस्ड ऑन बेसियन थ्योरम। सो लेट एक्स बी अ डेटा सैंपल एविडेंस, क्लास लेवल इज नो अननोन। ओके, अभी हमें क्लास लेवल नहीं पता है। लेट एच बी द हाइपोथेसिस दैट एक्स बिलोंग टू द क्लास सी। पर्टिकुलर क्लास है कोई जिसमें एक्स बिलोंग टू क्लास सी का हाइपोथेसिस एच है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी, the probability that the hypothesis holds given with the observed data sample x. P of h is the prior probability, the initial probability. Example, x will be by the computer। हमने एक पीछे एग्जांपल देखी ना कि एक डेटा सेट था, टेस्ट डेटा सेट, उसमें था कि हमारे मेन क्लास जो हमें प्रेडिक्ट करना था वो कंप्यूटर बायस द कंप्यूटर और नॉट। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ एज, इनकम, एटसेट्रा, probability that it will buy the computer is pure probability, prior probability, which is probability of hypothesis. P of x, probability that a sample data is observed। Okay, so probability of hypothesis such as x is given, so इसको हम बोलते हैं posteriori probability। इसी को हमें फाइंड करना होता है, the probability of observing the sample x given the hypothesis holds, यानी probability of x such that hypothesis h is hold। Okay, example, given that x will buy the computer। ओके, तो अब देखते हैं कि थियरम क्या है। गिवन द ट्रेनिंग डेटा x, posteriori probability of hypothesis h, probability of hypothesis such that x is given follows the Bayesian theorem, such as probability of x such that x is equals to probability of x such that hypothesis stands true into probability of hypothesis upon probability of that event x। Suppose that there are m classes C1, C2 up to Cm. The naive Bayesian classifier predict that tuple x belong to the class Ci if and only if उसका probability दूसरे class के probability से ज़्यादा है। Obvious। Practical difficulty की बात करें तो require initial knowledge of many probabilities, significant computational cost लगता है। Okay, towards naive Bayes classifier, let D be the training data set of tuple and their associated class labels, and each tuple is represented by a ND attribute vector x1, x2 up to xn. Suppose there are m classes C1, C2 up to Cm. Classification is to derive the maximum posteriori, that is the maximum probability that it will belong to class Ci for particular x, ठीक है। This can be derived from Bayesian theorem, which says that probability that it will belong to class Ci is probability that it is belonging to class Ci into probability of something belonging to that class upon probability of that event. Since probability of x is constant for all the cases, only we will consider this numerator। Okay, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट, जिसका मैक्सिमम होगा प्रोबेबिलिटी कि वो उस क्लास में बिलोंग करेगा, हम उस क्लास को कंसिडर कर लेंगे। ओके, नाउ डेरिवेशन अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू सी आई और belonging to a particular class is multiplication of all the probabilities. This greatly reduces the computation cost, only counts the class distribution। न्यूमेरिकल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा क्लास कॉलम है, दैट इट विल बाय द कंप्यूटर और नॉट। हमारे पास इसमें दो ही वैल्यूज हैं, दो ही क्लासेस हैं। क्लास वन सेज के यस इट विल बाय,
क्लास 2 सेज नो इट वोंट बाय। ओके, हमारे पास एक डेटा सैंपल उन्होंने दिया x which says that if age is less than equal to 30, income is medium, student है और क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो वो किस क्लास में जाएगा, C1 या C2? ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, बहुत क्लियर है। ओके, अब उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासेस निकालेंगे कि यस के कितनी है। अगर हम टेबल देखें तो यस का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउट ऑफ 14 है शायद टोटल। तो 9 आउट ऑफ 14 प्रोबेबिलिटी 0.643। सिमिलरली बचे हुए कितने हैं, 5 आउट ऑफ 14 0.357। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने क्लासेस के निकाल ली है। अब कंप्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास फॉर एक्स इवेंट। एक्स का हमें क्या दिया है उसने, एज लेस देन इक्वल टू 30। तो हमने पहले एज वाला लिए दोनों, और दोनों क्लास के साथ में यस वाले और नो वाले दोनों के साथ में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किए कि एज लेस देन 30 है और क्लास यस में बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे कितने हैं। एज लेस देन इक्वल टू 30 वाला ये है और ये 3 भी है। अब क्लास यस है, नो नो नो, एक यस वाला मिला, दो यस वाले मिले। ओके, तो हमने क्या कर दिया, यस के टोटल कितने थे अपने पास में 9, और उसमें से आए कितने यस, दो। तो 2 ऑफ 9 विच इज 0.222, और बाकी बचे हुए 3 ऑफ 5, क्योंकि 5 क्यों, हमारे नो के 5 थे ना, इसके लिए 5, 3/5 इज 0.66। नाउ सिमिलरली हमने किसके लिए किया, इनकम के लिए भी लिया, फिर वो स्टूडेंट है उसके लिए लिया, और क्रेडिट रेटिंग के लिए भी लिया। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने दोनों क्लासेस का यस और नो का अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। देन हमें जो डेटा सैंपल दिया था उसके जितने भी हमारे पास में एट्रीब्यूट्स थे, उन एट्रीब्यूट्स को दोनों क्लासेस के लिए उनके वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। एज लेस देन इक्वल टू 30, इनकम मीडियम, स्टूडेंट यस, क्रेडिट रेटिंग फेयर, ये चारों के लिए हमने यस नो, यानी ये टोटल 8 कंडीशन है, ये 8 वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बिलोंग टू क्लास सी आई इज, अगर यस वाले की हम देखें तो इट इज 0.222, यानी जितने भी हमने ये यस के कैलकुलेट किए, जैसे ये ये और ये, इनका मल्टीप्लिकेशन 0.222.4446767, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन हमें ये मिल गया। ठीक है, सिमिलरली नो वाले के लिए भी हमने किए और हमें ये मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी हमें ये मिल गया कि एक्स के लिए ये होगा उस क्लास में बिलोंग करने के लिए, अब वो उस क्लास में बिलोंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी दैट एक्स इवेंट इज ऑफ दैट क्लास, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें तो मिल गई, लेकिन अब ये उसी क्लास में बिलोंग करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो वैल्यूज मिली है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे यस वाले के साथ में और नो वाले के साथ में। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, 0.044 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.643, तो हमें मिल गया 0.028, और सिमिलरली हमने नो वाले को नो के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 0.019 को 0.357 से, तो हमें मिल गया 0.007। देयरफॉर x बिलोंग टू क्लास बाय द कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है ना नो से, इसके लिए वो उस क्लास में बिलोंग करेगा। तो ये हमने फाइंड करने के लिए कैसे किया, हमने सबसे पहले तो जो क्लासेस थे उसके देखे कि हमारे पास कितने क्लास आ रहे, येस और नो, उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली, प्रोबेबिलिटी फॉर येस एंड प्रोबेबिलिटी फॉर नो। फिर येस के लिए हमारे पास जो जो कंडीशंस थे वो चारों के लिए येस भी देखे हमने, नो भी देखे, फिर उन सब का प्रोडक्ट देखे, और फिर उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उनकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज से कि येस में बिलोंग करने की जो है और नो में बिलोंग करने की जो है। फिर जो मैक्सिमम आया हमने बोल दिया कि हाँ वो उस क्लास में बिलोंग करेगा। ये हो गया न्यू बेस्ड क्लासीफायर। अब एडवांटेजेस क्या है, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, गुड रिजल्ट ऑब्टेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, अजम्पशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंस, देयरफॉर लॉस ऑफ एक्यूरेसी। हो सकता है ना कि दो एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट हो जिसकी वजह से वो क्लास में बिलोंग कर रहा हो, बट ये तो इंडिपेंडेंट कंसिडर करता है जिसकी वजह से एक्यूरेसी में हमें लॉस आ सकता है। प्रैक्टिकली डिपेंडेंसी एक्सिस्ट अमंग द वेरिएबल्स, दैट्स व्हाट आई सेड। हाउ टू डील विद सच डिपेंडेंसीज, देन कम बेसिक बिलीफ नेटवर्क्स, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसमें हम कवर नहीं करने वाले हैं। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्लासिफिकेशंस, एंड
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड लिस्ट एप्लीकेशन और एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन देखी क्लासिफिकेशन की, एप्लीकेशंस भी देखा जैसे मेल का स्पैम है या नहीं है, और बहुत से देखे हमने एप्लीकेशंस। एक्सप्लेन इश्यूज इन डेटा क्लासिफिकेशन, जैसे प्री प्रोसेसिंग हो गया, एक्यूरेसी, स्केलेबिलिटी, ये सारे हो गए। एक्सप्लेन डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन विद द एग्जांपल, हमने डिसीजन ट्री देखा, उसका रूट नोड क्या होएगा वो देखा, देन लीव्स, क्लासेस, और explain different attribute selection measure used for inducing decision tree। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो गेन जो ज़्यादा दे रहा है, देन डिफरेंस कम होना चाहिए, उसके बाद हमने थोड़े और एडवांस्ड वाले भी देखे। गिवन अ डेटा सेट विद एसोसिएशन क्लास लेबल, फाइंड द रूट नोड ऑफ द डिसीजन ट्री। हम कैसे फाइंड करेंगे रूट नोड क्या होने वाला है, कि इन्फो गेन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम गेन निकालेंगे और मैक्सिमम गेन वाला जो रहेगा हम उसको रूट नोड कंसिडर कर लेंगे। ओके, व्हाट इज ओवरफिटिंग, ज्यादा ही सीख लेना, अंडरफिटिंग, खुद का ही नहीं सीख पाना तो जनरलाइज क्या करेगा। मेथड्स ऑफ ट्री प्रूनिंग, दो हमने बताए, एक प्री, एक पोस्ट, ठीक है। स्टेट द अजम्पशन मेड बाय द नेव बेस्ड क्लासिफायर, क्या बोलता है कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास लेवल, ठीक है। नेव बेस्ड क्लासिफायर विद एग्जांपल, हमने अभी एक एग्जांपल देखी। गिवन डेटा सेट विद एसोसिएटेड क्लास लेवल क्लासिफायर टपल्स यूजिंग नेव बेस्ड क्लासिफायर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। हमें पता है किस तरह जाना है, हमें क्लासेस को पहले अलग अलग क्लासेस देखनी है, उनके प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, और हर क्लास के लिए हमें फिर लगा देना है, इजी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।